عام انتخابات کی تیاریاں امیدواروں کو آج انتخابی نشانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرستیں بھی آج جاری کرے گا۔ پولنگ اسٹیشنوں کی حتمی فہرست انتخابات سے 15 روز قبل آویزاں کی جائے گی۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے۔ جمہوریت ملک کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بنیادی سوال جمہوریت کا ہے، پارٹی آئین پر مکمل عمل درآمد کریں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدواروں کے نام حلقہ نمبر کے مطابق جاری کیے گئے ہیں۔ 9 مئی میں مخصوص جماعت کے سرکردہ کارکنوں کے براہ راست ملوث ہونے کے نئے شواہد منظر عام پر آ گئے۔ ویڈیو میں شرپسند ہجوم کو لاہور کنٹونمنٹ کے داخلی دروازے کے سامنے سڑک بلاک کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مخصوص جماعت کا سرکردہ کارندہ عباد فاروق مشتعل ہجوم کو مزید توڑ پھوڑ پر اکساتا رہا۔ ان شرپسند عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا قومی مفاد کا تقاضا ہے۔ سیاسی جماعت نہیں، ہم ایک سیاسی خاندان ہے اور ہمارا جو تعلق ہے اس شہر ملتان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے یہ اب 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے جدوجہد کریں گے۔ ہم مل کے جب جدوجہد کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ملتان کے پورے ملتان کی آواز بنیں گے، ملتان کی نمائندگی کریں گے، پورے وسیب کی نمائندگی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پورا ملک کا نمائندگی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کے لیے ہمارا وسیب کے لیے جو محنت کیا ہے، وہ جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ گیلانی صاحب یہاں ملتان سے ہم نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور گیلانی صاحب نے ملتان کو اپنا دور میں جو نہ صرف ملتان میں مگر پورا جنوبی پنجاب میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جو ہمیں آپ کو پرسنٹیج ملنا چاہیے پی ایس ڈی پی کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت 2008 سے لے کے 2013 تک وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اس پرسنٹیج پہ پہنچے ہیں۔ ہم یہاں کام کرنے چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی جو جدوجہد ہے اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار رہا، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا تو ہم نے سینٹ سے بھی قرارداد پاس کیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد بھی جاری رہے گا۔ میں نے اس الیکشن کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ جو ہمارا اور پاکستان کے عوام سے یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان کے تمام کارکن، تمام عہدیدار گھر گھر جا کے پیپلز پارٹی کے منشور کو، پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا کو ملتان کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم ان کے تنخواہ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی مفت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی علاج، جیسے ہم نے سکھر میں NICVD بنا دیا، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہو۔ ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، انہیں وہ سکلز دیں گے، انہیں وہ تعلیم دیں گے، انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے، تاکہ وہ خود وہ روزگار کے
मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं तो कि तीर के पे तफ़ा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सके। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूँ, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफ़रत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा तो ये जो मेरा भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ दे के हमें एक तरफ राइटिस्ट है और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट है, तो आप इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नजरिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात होगी, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा। देखिए आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नजरिया पे अमल दरामद करें और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नज़रिया और बाकी सियासी जमातों का नज़रिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। मुमताज़ भाई कौन है? मुमताज़ नियाज़ी साहब। मुमताज़ नियाज़ी मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, खास तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा पार्टी को उठा रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आप कोalition गवर्नमेंट में बैठना पसंद करेंगे या अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे? अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सकें। जो इस वक्त मुल्क में सियासत में जो नफ़रत और तकसीम का सियासत है और जो पोलराइजेशन और पार्टिज़नशिप एक अरूज पे पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि वो बुखार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ सकती है। अगर PTI का हुकूमत किसी न किसी तरीके से बना तो उनका एक ही काम होगा कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से सियासी इंतकाम लेना है। और मियाँ साहब ने आज से दिखा दिया है, अब से दिखा दिया है कि उसका यही इरादा है कि अगर हुकूमत में आया तो सियासी इंतकाम लेना है, उन सब से पूछना है, उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। हम ही हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर सियासतदान का काम ये होना चाहिए कि हम कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे, कैसे बेरोज़गारी का मुकाबला करेंगे, कैसे गुर्बत का मुकाबला करेंगे, और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, प्लान है।
دیکھو جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے، اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو، اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے، ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم، جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے۔ اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا، کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے۔ آپ کے دوستوں نے بات کی ہے سر، ملتان سے آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے۔ مظہر جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کو منصوبے میں شامل کیا۔ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ایران صاحب کے دور میں سارا سلسلہ ہوا۔ آج جو ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، اس کا بنیادی موٹو یہ ہے کہ اس خطے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اللہ کرے آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پورے وسیب کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے، اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا کہ لانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا، ناٹ جسٹ ریزولوشن۔ آج کل ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، ہم تو پورا پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے، سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا اور ادھر سے آگے گیا۔ آج بھی ہم اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم پنجاب کے عوام سے، جنوبی پنجاب کے عوام سے، سب سے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، وسیب کے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اب نہ صرف وفاق میں، آپ یہاں صوبہ پنجاب میں اگر آپ مجھے حکومت بنائیں تو پھر میں اصل معنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواہشات ہیں وسیب کے لیے، وسیب کے عوام کے لیے، وہ ہم پورا کر سکیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو سرپرائز دیں گے۔ عوام ابھی تک سیشو پانچ میں ہے، ایون کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی سیشو پانچ میں، پتہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ سینٹ میں ہر دوسرے دن جو ہے قرارداد منظور ہو جاتی ہے، پاس بھی ہو جاتی ہے کہ الیکشن لیٹ کیا جائے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن 3 مہینے لیٹ کیے جائیں۔ پھر کے پی میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا لیٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یا کچھ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ باقی جو بھی چاہے، ہم تو الیکشن کیمپین آج سے نہیں کافی دیر سے چلا رہے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارا چیف جسٹس اس وقت ہے، اس نے ایک واضح رولنگ دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پتھر کے لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 فیبرری الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں کہ لوگوں کو اپنا کیمپین شروع کرنا چاہیے، اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ وہ ان کا اپنا قصور ہوگا، مطلب کس نے ان کو کہا کہ اتنا گھڑبڑ کرے اپنا پارٹی الیکشنز میں؟ ان کو معلوم تھا کہ مشکل وقت ہے، تھوڑا سا فارمیلٹیز پورا کر دیتے، تھوڑا سا ہوم ورک کر دیتے،
میں تو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکن پہ ترس رہا ہوں کہ ان کی آپ قیادت دیکھیں، ان کے لیڈرز دیکھیں کہ اتنا اہم وقت ہے ان کے لیے، وہ کس قسم کا کیس پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے۔ میرا خیال میں اگر ایک صحیح کیس پلیٹ کیا جاتا تو شاید ان کا نشان ملے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے الیکشنز میں گڑبڑ کیا ہے، کیس بھی کمزور پلیٹ کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید وہ دوسرا نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے اجازت مانگنا پڑے گا، مجھے آگے جانا ہے۔ آپ کو بھاولپور میں ہمارا پارٹی کا کنونشن ہے آج، آپ سب شکریہ بھائی۔ مجھے سر، ہم نے پہلے کبھی کسی وعدہ خلافی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے اگر قائد عوام نے روٹی کا پر مکان کا نعرہ لگایا تو یہ 50 لاکھ گھر اور 2 کروڑ نوکریاں کی طرح نہیں تھا۔ قائد عوام نے وہ وعدے پورے کیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے۔ جو ہمارا 2007-8 کا الیکشن کی منشور تھا اس میں ہم نے عمل درآمد کیا، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، بینظیر انکم سپورٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور انشاءاللہ تعالی جو میرے عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات ہیں میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے؟ ملتان اور جنوبی پنجاب کے عوام کو حقوق فراہم کریں گے۔ ملتان کے ساتھ دیرینہ تعلق ہے، عوام نے منتخب کیا تو ملتان کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کر کے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامہ باقاعدہ شروع کیا جائے گا اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ ملک بھر میں عام انتخابات 2024 کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات آج سے الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ اسٹیشنوں کی حتمی فہرست آویزاں کی جائے گی۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ پی ٹی آئی انتخابی نشان اور پارٹی الیکشن کیس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت جاری ہے۔ کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس وقت کر رہا ہے۔ مزید تفصیل معلوم کر لیتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز حسین سے۔ اعجاز، بتائیے گا سماعت اس وقت جاری ہے، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ علی ظفر تحریک انصاف کے وکیل ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پارٹی انتخابات میں بے ضابط کی ہوتی ہے تو اس پر الیکشن کمیشن 2 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ پھر سول کورٹ میں چلنا چاہیے۔ جس کو شکایت ہے انتخابات سے وہ سول کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں خاص اختیارات حاصل نہیں، لیکن ساتھ آپ اس چیز کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پارٹی انتخابات میں کسی قسم کی بے ضابطگی ہونے پر وہ 2 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن 2 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پارٹی انتخابات جو ہیں وہ جمہوریت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر پارٹی کے اندر جمہوریت ہوگی تو سیاست میں ملک میں بھی سیاسی طور پر بھی ملک میں جمہوریت آئے گی۔ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، ملک میں بھی جمہوریت ضروری ہے، اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علی ظفر کا یہ بھی کہنا ہے، جو کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر عدالت سے کہا کہ جو بابر ہیں ان کا جو درخواست گزار ہے ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جا چکی ہے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا
ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस का कि वो रुकनीत उनकी ख़त्म करने का जो कोई कागजी कार्रवाई है या दस्तावेज़ है वो अदालत को दिखा दी जाए, तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वो रुकनीत नहीं है उनकी तो वो कैसे इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली का भी ये कहना है कि कैसे इस सारे मामले को टेकअप किया गया, जो इंतखाबात के हवाले से कैसे उम्मीदवारों को बताया गया कि कब इंतखाबात होने हैं, कैसे होने हैं, कहाँ होने हैं, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि वेबसाइट पर तमाम कुछ आवेज़ा कर दिया गया था। तो जिस पर चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि जिसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं वो क्या इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। ये लाखों लोग हैं जो कि अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको किस तरह ये इल्म होगा। और साथ ये कहना है अदालत का कि इंतखाबात में हिस्सा लेना यानी इंतखाबात लड़ना और वोट डालना हर रुकन का बुनियादी हक है। उसी तरह से बुनियादी हक है जैसे आइन के आर्टिकल 17 के तहत कोई सियासी जमात शमूलियत अख्तियार करना और साथ ही साथ ये है कि वोट डालने का हक होता है। अभी इस मामले की समाअत जारी है, लेकिन आज क्योंकि आखिरी रोज़ है इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का, तो इस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी इस चीज़ को वाज़ेह किया कि आज इस हवाले से फ़ैसला दिया जाएगा। क्योंकि जो हफ्ता है उस रोज़ समाअत नहीं होती, आज समाअत क्योंकि गैर मामूली हालात में की जा रही है, तो लिहाजा इस बात का काफ़ी इम्कान है कि आज शाम तक ये फ़ैसला आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन आपका। नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के रूबरू दरखास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे शाहिद वफा से। शाहिद वफा, कहिएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच समाअत कर रहा है, क्या अहवाल है समाअतों का? जी, इस हवाले से जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो काम कर रहा है। और इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसले दिए थे आरओज़ के फैसलों के खिलाफ, उन पर जो अपीलें हैं वो ये इस बेंच का जो काम है वो उन अपीलों की समाअत है। और इस हवाले से अब तक जो 4 अहम जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। उनमें एक शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त थी, इसके अलावा परवेज़ इलाही, मोनस इलाही की दरख्वास्त और पीटीआई की एक कारकुन जो है सनम जावेद, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ इस फुल बेंच से रुजू किया था। इन तमाम दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद बेंच इस पर फैसला महफूज कर चुका है। आज ताज़ा तरीन जो समाअत थी वो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत थी और उनके वकला ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कागजात नामजदगी में कवायद मुकम्मल दर्ज ना करने का जो एतराज़ है वो गलत और बेबुनियाद है और उन्होंने तमाम कवायद दिए थे। लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कालअदम करार देते हुए उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। कम बेश तमाम जो दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ जो थे वो इससे मिलते जुलते ही थे और समाअत इन फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इन पर फैसले महफूज हो चुके हैं और इम्कान है कि आज किसी रोज़ इन तमाम दरख्वास्तों पर फुल बेंच जो है वो अपना हतमी फैसला सुना देगा। जी शुक्रिया शाहिद वफा आपका। हमें तफसीलन अहवाल से आगाह करने के हवाले से रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में उम्मीदवारों की आइनी दरखास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब सियासी जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट पर सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद से। इसरार अहमद, कोयटा का अहवाल हमसे शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, उम्मीदवारों की जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की गई जिनके कागजात मंजूर होने के खिलाफ इसमें भी महफूज फैसला भी सुना दिए गए, जबकि सरदार अख्तर मेंगल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। और इसी तरह साबिक निगरान सूबाई वज़ीर के जमाल रैसानी को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। इसी तरह कल उम्मीदवारों की लिस्टें भी आवेजा कर दी गई हैं और आज 13 जनवरी को इन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलाट की जा रही है। दूसरी जानिब सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, जबकि मौलाना फजल रहमान के हक में पश्तूनख्वा मेप के सरबराह महमूद खान चकज़ई भी दस्तबरदार हो गए। इसी तरह पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की जो सरबराह है खुशहाल खान काकर, इसके भी हक में ANP के रहनुमा दस्तबरदार हो चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम की अगर हम बात करें तो बलोच बेल्ट में BNP के साथ और पश्तून बेल्ट में पश्तूनख्वा मेप के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी है, जबकि नून लीग और नेशनल पार्टी की भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, कोयटा से अपडेट कर रहे थे इसरार अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क़ौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने क़ौमी असम्बली की 266 में से 33 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान ज़ेर इल्तिवा रखा है।
तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने वाले नुमाया उम्मीदवारों में बैरिस्टर गौहर खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, उमर अयूब खान, मुराद सईद, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, अली अमीन गंडापुर, ताहिर सादिक, राजा बिशारत और अयाज अमीर शामिल हैं। कौमी असम्बली के लिए दीगर नामों में रियाज फतेहाना, मलिक आमिर डोगर, कंवल शोजब, आलिया हमजा, मियां अजहर, यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी, लतीफ़ खोसा और शेर अफजल मरवत शामिल हैं। जमशेद दस्ती और जरताज गुल वज़ीर को भी टिकट जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने बलूचिस्तान से भी कौमी और सूबाई असम्बली इंतखाबात के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया है। कान के हल्के से इलेक्शन लड़ा है, रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान से भी पीटीआई ने कौमी और सूबाई असेंबली हलकों के लिए नामों के ऐलान कर दिए। साबिक डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली सरदार बाबर मूसा खेल को पार्टी की तरफ से कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों से टिकट दिया गया है। बाबर मूसा खेल NA 252 मूसा खेल बारखान लोरलाए दुक्की और NA 258 पंजगूर कम केच से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन 2018 में बाबर मूसा खेल आबाई इलाके PV 4 से रुकने सूबाई असेंबली बने थे। कौमी असेंबली के हलकों NA 251 शिरानी योब किला सैफुल्ला से नवाबजदा अमीन जोगेजई, NA 253 जियारत हरनाई सेबी कोहलू और डेरा बुक्टी से सदाम तरीन, 254 झलमक्सी कच्ची नसीराबाद से पीर बख्श जामोट, NA 255 सोबतपुर जाफराबाद उस्ता मोहम्मद से आरिफ रिंद, हल्का 257 हब लसबेला और आवरान से मीर अली अहमद जहरी, केच कम गवादर 259 से सरदार अकबर तरीन, रक्षान डिवीजन के 4 इजला की नशिस्त NA 260 चागी नोशकी खारान और वाशुक से गुलाम कादिर संजरानी पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। कोयटा से कौमी असेंबली की 3 नशिस्तों NA 262, 263 और 264 से सैफुल्ला काकड़, सालार खान और जैनुद्दीन खिलजी को टिकट दिए गए हैं। NA 265 पशीन से साबिक गवर्नर सैयद जहूर आगा, जबकि NA 266 किला अब्दुल्ला चमन से मलिक मोहम्मद असमत काकड़ पीटीआई टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कौमी असेंबली के 2 हलकों NA 256 खुसदार और NA 261 सूराब से किसी उम्मीदवार का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ से सूबाई असेंबली इंतखाबात के लिए 51 हलकों में से 30 पर उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। केच से बलूचिस्तान असेंबली की 4 और खुसदार की 3 नशिस्तों पर किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। कलात, सूराब, नोशकी, खरान, गवादर, आवरान, लसबेला, हब, डेरा बुक्टी, कोहलू, PB 38 कोयटा 1 और PB 46 कोयटा 9 से भी किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और 9 मई में मखसूस जमात के सरकर्दा कारकुनों के बराह रास्त मुलविस होने के नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो में शरपसंद हजूम को लाहौर कैंटोनमेंट के दाखिली दरवाजे के सामने सड़क ब्लॉक करते हुए देखा जा सकता है। मखसूस जमात का सरकर्दा कारिंदा इबाद फारूक मुश्तिल हजूम को मजीद तोड़ फोड़ पर उकसाता दिखाई दे रहा है। हाथों में पार्टी झंडे उठाए डंडा बरदार मुश्तिल शरपसंदों को चेक पोस्ट गिराते और साइन बोर्ड तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है। क्या इन वाज़ेह नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में मखसूस जमातों के मुलव्वस कारिंदे किसी रियायत के मुस्तहक हैं? कौमी मफाद का तकाजा है कि इन शरपसंद अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की शरअंगेज़ी दोहराई ना जा सके। अवाम ने एक बार फिर 9 मई को शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अवाम कहते हैं कि 9 मई को शरपसंदी फैलाने वाले दुश्मन से भी बदतर निकले। यह अवाम और फौज को लड़वाने की एक साजिश थी। PTI वालों ने अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक लाया जाए। PTI वालों ने बहुत ज्यादती की है। 9 मई को अपने मुल्क को नुकसान दिया है। इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत की है। 9 मई का वाकया ये एक साजिश थी, ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले भी लीडर गिरफ्तार होते रहे, ये कोई नया लीडर गिरफ्तार तो नहीं होता ना कि आप पाकिस्तान में चढ़ दौड़े। तो ये तो सरासर मतलब इंतहाई गलत काम था। एक साजिश थी पाकिस्तान अवाम को फौज को आमने सामने लाने की। तो मेरे ख्याल में इनका सदे बहादुरों ने पूछना चाहिए, सजाएं को देनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं कर रहे? जो भी इसमें मुलविस हो इसको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वाकया नुमा हुआ वो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 9 मई को PTI वालों ने अपना असल चेहरा अवाम को दिखाया। इनका बाइकाट करना चाहिए जिन्होंने ये किया 9 मई का। इन लोगों ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा, जबकि अगर दुश्मनों के साथ भी जंग लड़ी जाए तो वो भी अस्पतालों पे तकरीबन थोड़ी बहुत परहेज करेंगे। इन शरपसंदों ने दुश्मनों से भी बदतरीन दुश्मन निकले हमारे।
पाकिस्तान ने मुल्की दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम संग मील उबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी एयर डिफेंस ने सोनमियानी में जारी अलबैजा सोम जंगी मशकों के दौरान जदीद तरीन हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का कामयाब तजुर्बा किया। तजुर्बे में दरमियानी और ज़्यादा बुलंदी पर दुश्मन के जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत को कामयाबी से जांचा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर कराची, कमांडर आर्मी एयर डिफेंस, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी एयर डिफेंस की तरफ से कामयाब तजुर्बा काबिल सताइश है। कामयाब मश्क आर्मी एयर डिफेंस कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन अक्कासी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अहद हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक वेपन सिस्टम को जदीद अंदाज में ढाल रही हैं ताकि किसी भी खतरे का बरवक्त और मौसर जवाब दिया जा सके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन कराची का मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान ने सुपर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम में पेशरफ्त और खुद कफालत की मंजिल के हुसूल की जानिब अहम पेशकदमी की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इज़हार कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से नौजवानों और आने वाली नस्लों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हुसूल में मुआवनत मिलेगी। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन जैसे जदीद तरीन मंसूबे की तकमील को संगे मील करार देते हुए पाक फ़ज़ाइया की क़यादत और अफसरान की पेशेवराना महारत की तारीफ़ की। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन दुनिया भर में एरोस्पेस, साइबर एंड IT के हवाले से बेहतरीन इदारा गर्दाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस इदारे के तहत कौमी उमंगों के मुताबिक तहकीक और तरक्की के हवाले से जदीद मराकज़ बनाए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर तफसीलन ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ को शुहदा के खानदानों और जवानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया गया। उधर इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सहियोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक जनूबी शहरों खान यूनस और रफ़ाह में अलसुब हमले किए गए, ताहम अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं आई। गजा के बेशतर इलाकों में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है और इंटरनेट की बंदिश की वजह से इलाके का बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक फ़लस्तीनियों के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 23,708 हो गई, जिसमें 10,000 मासूम बच्चे शामिल हैं। काबिज इसराइली फ़ौज के हमलों में ज़ख्मियों की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। गजा के मीडिया के मुताबिक अल अक्सा अस्पताल में तेल की किल्लत की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ICU और नर्सरी के शोबों में दाखिल मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के मजालिम का सिलसिला जारी है। सहियोनी फ़ौज ने कलकुलिया, बैतुल्लहम और अल-खलील समेत मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाई की और मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। यमन की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। इजलास रूस की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहरा अहमर में यमन और इलाके की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए खित्ते में सलामती और ममालिक के मफादात को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। अमरीका और इत्तेहादियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर मुसलसल दूसरी रात भी हमले जारी रखे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हौसी बागियों के रडार तंसीबात पर मिसाइल हमला किया गया है ताकि बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमलों के खदशे को कम से कम किया जा सके। हौसी बागियों ने अमरीकी हमले की तस्दीक की है, ताहम नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हौसियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हौसियों ने अपना रवैया ना बदला तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चीन ने यमन और बहरा अहमर में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए तमाम फरीकों से सब्र तहम्मुल की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बहरा अहमर आलमी तिजारत का रूट है, इसलिए वहाँ पर किसी किस्म की कशीदगी से तमाम फरीक मुतासर होंगे। यमन में अमरीकी और बरतानवी हमलों के खिलाफ वाशिंगटन में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया।
सऊदी अरब ने रवां साल हज सीजन के लिए ऑपरेशनल सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा ने जद्दा में 4 रोज़ा हज व उम्रा सर्विसेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर किया। तकरीब में सऊदी विजन 2030 के मकासद के मुताबिक मुख्तलिफ नई खिदमात और टेक्नोलॉजीज़ का आगाज़ किया गया। कॉन्फ्रेंस में आज़मीन हज की सहूलत के लिए रहाइश, लॉजिस्टिक खिदमात, सेहत की देखभाल, नकलो हमल, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से मुतालिक मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। ताइवान में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। सदारती इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदर और हुक्मरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सदारती उम्मीदवार लाई चिंगते, सबसे बड़ी पोजीशन पार्टी के एमटी के हुआये और ताइवान पीपल्स पार्टी के ताइपे के उम्मीदवार हैं। लाइचिंग और होयो के दरमियान सख्त मुकाबले मुतवक्के हैं। लाइचिंग ने अपना वोट कास्ट करने के बाद अपने एक बयान में कहा कि वो अपनाए ताइवान में अमन के तहफ़्फ़ुज़ और जज़ीरे के दिफा को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। ताइवान के मरकज़ी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात KMT के सदारती उम्मीदवार होयुए ने सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के लोगों के तबादले के ख़्वाह हैं। दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि निगरान वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने अपने 4 माह में वो काम किए जो कई सालों से इल्तवा का शिकार थे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत के 4 माह के दौरान वजारत IT की कारकर्दगी शानदार रही। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसियों और मनसूबों की बरवक्त मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जामियात से फारिग 2 लाख IT ग्रेजुएट्स को आलमी मयार की तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रीलांसर्स को एक छत तले सहूलियात की फराहमी के लिए 10,000 रोज़गार मराकज़ बनाए जा रहे हैं, जिससे 10 लाख फ्रीलांसर्स IT एक्सपोर्ट में $10 अरब सालाना इजाफा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वतन अजीज़ नफरत और तकसीम की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम आवाम की खिदमत की सियासत जारी रखते हुए तमाम तर तवानाइयाँ कौमी तरक्की के लिए सर्व करेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। वतनी अजीज़ को हकीकी मानों में कायद और इकबाल का मुल्क बनाने के लिए सबको कोशिश करना होगी। मजीद खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। और नाज़रीन, आम इंतखाबात में 1 माह से भी कम अरसा रह गया है। मुल्क की सियासी जमातों के अहम रहनुमा किन हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में।
8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ملکی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ رہنما بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور کے حلقہ NA 130 اور مانسیرہ کے حلقہ NA 15 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی لاہور کے حلقہ NA 119 سے میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس بار قصور کے حلقہ NA 132 اور لاہور کے حلقہ NA 123 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف سیالکوٹ کے حلقہ NA 71 سے میدان میں ہیں۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ اپنے آبائی شہر فیصل آباد کے حلقہ NA 100 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین بھی میدان میں ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اپنے آبائی شہر نواب شاہ کے حلقہ NA 207 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے حلقہ 194 کے علاوہ لاہور کے حلقہ 127 سے بھی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں الیکشن لڑا تھا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ملتان کے حلقہ NA 148 سے قسمت آزما رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان پشین کے حلقہ NA 265 اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ NA 44 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین ملتان کے حلقہ NA 149 اور لودرا کے حلقہ NA 155 سے انتخابی مارکے میں شریک ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان لاہور کے حلقہ NA 117 اور NA 147 خانے وال سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق لوور دیر کے حلقہ NA 6 سے میدان میں ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 796 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 55 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ واپس جانے والوں میں 217 مرد، 207 خواتین اور 372 بچے شامل تھے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 12 جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,66,410 ہو گئی ہے۔ اور ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب میں شدید سرد موسم میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ملتان سے ایک روز میں چیکنگ ٹیموں نے مزید 72 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ کر مختلف پولیس اسٹیشنز میں 37 نئے مقدمات کا اندراج کیا ہے۔ بجلی چوروں کو 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن میں 3 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ نادہندہ زرعی صارفین کے خلاف جاری آپریشن میں بہاول نگر اور خانیوال سے 2 ٹرانسفارمرز بھی اتار لیے گئے۔ نادہندہ کاشتکاروں کے ذمے 9,90,000 روپے واجبات تھے، جن کی عدم ادائیگی پر کنیکشنز منقطع کیے گئے ہیں۔ اور DW نے انتخابات کے قریب آتے ہی مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا راز فاش کر دیا ہے۔ مودی سرکار کا مسلمان دشمنی میں ایک اور منصوبہ مکمل ہو گیا۔ مودی سرکار نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے 22 جنوری کو بابری مسجد کے مقدس مقام پر رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انتخابات میں انتہا پسند ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے BJP نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں زمین تنگ کر دی۔ رام مندر کے افتتاح کی تاریخ قریب آتے ہی انتہا پسند ہندوؤں نے ملک میں انتشار اور فسادات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ رام مندر کے افتتاح کے حوالے سے ہندوستان میں مسلمان رہنماؤں نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رام مندر سے متعلق مجوزہ تقاریب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کشمیریوں اور حریت تنظیموں کو جدوجہد آزادی کشمیر سے ان کی وابستگی پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ KMS کے مطابق مودی حکومت نے اپنے تازہ اقدام میں مقبوضہ کشمیر میں اپنی کٹ پتلی انتظامیہ کو تحریک حریت جموں کشمیر اور جموں کشمیر مسلم لیگ کے تمام اثاثے ضبط کرنے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قابض انتظامیہ پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر دفتر اور مقبوضہ علاقے میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں کی زیر ملکیت سینکڑوں مکانوں اور دیگر املاک ضبط کر چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں سے جنوبی ایشیا کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔
और नाज़रीन, गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल में मटियारी ज़िला के मुतासर होने वाले अफराद को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्तराक से ज़कात फ़ंड अमरीका की जानिब से गरीब अफराद को मकानात तामीर करवा के दिए जा रहे हैं। शदीद सर्दी में बगैर छत के तले बैठे हुए लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल। गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल में मटियारी जिले में भी मुतासर होने वाले कई गरीब बेसहारा अफराद शदीद सर्दी में परेशान हैं। वहाँ ओवरसीज पाकिस्तान डोनर्स के इश्तराक से ज़कात फाउंडेशन अमरीका की जानिब से सिंध के दीगर जिला की तरह मटियारी जिले के मंसूरा डेपर इलाके में गरीब बेसहारा यतीम सैलाब मुतासरीन के 2 कमरों पर मुबनी पक्के मकानात ज़ेर तामीर हैं, जिनका तंजीम के CEO फरुख रजा और कंट्री डायरेक्टर फजल रहमान ने इफ्तिताह किया। ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने यहाँ 25 घर बनाए हैं। पूरे इस लोअर सिंध के अंदर 200 घर बनाए हैं, जिनमें से इस बस्ती के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोग थे उनके लिए जो है 25 घर बनाए। बड़ी खुशी हुई मुझे कि रीड फाउंडेशन की टीम जो है यहाँ पूरी तरीके से हमारी मदद के लिए तैयार है। तंजीम की जानिब से मकानात ज़ेर तामीर होने पर सैलाब मुतासरीन ने शुक्रिया अदा किया है। हमारी जो जगह थी वो गिर गई थी, आसमान खुला था, उसने बना के दी, उनको दुआ करते हैं। शुक्रगुजार हैं ज़कात फाउंडेशन वालों की तरफ से जो हमें घर मिले हैं। मेरे 8 बच्चे हैं, कच्चा मकान था, वो जो बरसातें आई थी, बरसातों में वो गिर गया था। दीगर तंजीम के अरकान और मुखियर हजरात भी सैलाब मुतासरीन की मदद करें ताकि ये बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। अस्सलामुअलैकुम, खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। तिब्बी माहिरीन ने ठंडे मौसम में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदफ अफजल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। बारिशों के ना होने, शदीद सर्द और खुश्क मौसम के बाइस वबाई अमराज में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बात करें अगर वफाकी दारुल हुकूमत की, तो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के वायरस शहरियों की सेहत मुतासर कर रहे हैं। 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, वो नमूनिया का शिकार हैं। सारे वायरसेस की टेस्टिंग कर रही हैं और हमारे पास अभी तक एक पेशेंट भी कोविड का नहीं आया, लेकिन टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंजा और RSV वायरस है। अगर बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब है, उनको टेस्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए। आपको पता है कि NIH में इन्फ्लुएंजा हो या कोविड-19 हो, दोनों की टेस्टिंग फ्री हो रही है। जुड़वा शहरों में फैलने वाले अमराज और टेस्टिंग की जरूरत के हवाले से कौमी इदारे सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से इस्लामाबाद में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। This is a peak influenza season which begins in October. We have a rise in number of cases in December, January. Our seminar today about was seasonal annual influenza vaccination for certain high priority groups. पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन के लिए कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी, और ये जो स्टडी आगा खान यूनिवर्सिटी ने की है कि सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास 70% पेशेंट जो अभी रिपोर्ट हो रहे थे that are the related with respiratory tract infection, हमारे पास इस केसेस की कोई मार्टलिटी सच नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस शदीद मौसम में सांस की बीमारियों, TB और एलर्जी के मरीजों का खास ख्याल रखा जाए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मतला अब्रालूद रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी, जबकि खित्ते पोठोहार में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहर पड़ने की तवक्को है। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।